Hello. Yeah. Hi, Dr. Hi. Monica. Hi, Dr. Akriti. Shall we start? Yeah, I mean, let's see if more people can join in. Right. Okay, anyways, you will be saving. आप save तो करोगे इसको. Yeah. I'll be saving. Shall I start then? हाँ हम कर सकते हैं Okay. फिर start ना. ठीक है. Hello everyone. I am Dr. Malvika Dahuja and I have in front of me Dr. Akriti Gupta. I am MD psychiatrist and she is a gynecologist and an infertility specialist. Today we will be going live and talking on the topic impact of infertility on mental health. So he'll be covering, Dr. Akriti, you'll be covering regarding infertility and all the aspects. And I'll be talking on the mental health issues and the concerns which arise out of this issue as infertility as a whole. So let's start. Okay, Dr. Akriti, all over to you. Uh, so पहले we'll mostly talk about what exactly infertility. तो basically infertility को हम कब कहते हैं कि एक couple infertile है. Usually अगर एक couple 1 year तक try कर रहा है naturally and they are trying every month या मतलब alternate month for that matter और 1 year तक try करने के बाद if they don't conceive, don't get pregnant, तो we call that couple to be infertile. बट अगर लेडी की जो एज है वो 35 years से ज़्यादा है तो इस ड्यूरेशन को 6 months कर दिया जाता है. तो इन केस अगर 6 months में एक 35 years की लेडी जो कि 1 year ऑफ मैरिज से ट्राई कर रही है और उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, नॉट 1 year, देन एट 6 months, तो उसको हम इनफर्टाइल कपल कह के अंदर शामिल करेंगे. सो वी कंसिडर एज ऑफ द लेडी टू बी मोर इम्पोर्टेंट. वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है और इसीलिए उसके बेसिस पे हम एक इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन देते हैं. राइट. तो दिस इज व्हाट इज इनफर्टिलिटी. तो आज जो हमने बात करनी है वो इस इम्पैक्ट पे है कि किस हद तक इनफर्टिलिटी जो है मेंटल स्टेटस को अफेक्ट करती है कपल्स की. तो पहले तो आई थिंक द कॉजेज आई गेस जो हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे दैट इज लेट मैरिज. लेट मैरिज है वो ऐसा एक कारण है जिसके कारण इश्यूज आ रहे से आगे जाके उनको मतलब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो रहा है फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट. सो आपको व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू, मतलब लेट मैरिजेस में ऐसा क्या है कि what could be the reasons, like according to you? Maybe many patients would be coming to you also. Yeah. तो Patients come to me, couples come to me कि late marriages क्यों हुई, कि we were trying to find a right match, we had to complete our education, we needed to be employed, we need financial security, they were more career oriented than just marrying early. And people like us doing graduation and post graduation and being in medical field, it takes long time for us to complete all that and then get married. ये सब बहुत सारे reasons हमारे पास रहे हैं इस time पे जितने भी all together. People had come कि maybe this is why we married late and then now we have issues regarding infertility and now we are coping with the stress of infertility. So now what do we do? Yeah. Correct. And even patients, they have this concept of like many people in the IT sector or those for that matter, even in the civil services, many people who they aspire for. I mean, I'm just categorizing two or three professions. Even entertainment industry, if you see, so they are postponing their marriages because of years. So it's not just the medical profession; like it is almost everywhere now, whether it is any sector, fashion or entertainment or then the concept of body structure, body disfiguration, when they marry then they'll have pregnancy, all those issues have also come. Even your physical appearance, that is also creating a problem for like girls and boys. So वो भी किसी हद तक जो है late marriage factor है late marriage का. Definitely है, and that is something which is there in the society, deep rooted, which is there for generations altogether. Right. एंड सो अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ की कि मतलब अगर जैसे इनफर्टाइल कपल बड़ी बार मेरे पास आते हैं, मेजॉरिटी टाइम्स ऑब्वियसली देयर इज अ स्ट्रेस इन देयर सिंस दे आर नोइंग कि उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही. तो वो मेरे पास आ रहे हैं एंड कंसल्टेशन सीख करने के लिए. So telling them that they are infertile. So now we have a term called as subfertility. इसके लिए. So that infertile sounds very bad.
और A वो ईगो को, stigmatizing word. एग्जैक्टली वो कर जाता है और पेशेंट को मतलब एक धक्का लगता है या एक कह लो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और वो भी उनको एक स्ट्रेस फैक्टर आ जाता है एडिशनल की, लाइक यू नो ये एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है उनकी लाइफ में. So we have labeled it now down newer terms which are coming for telling that patient is infertile, or so we don't tell infertile, हम subfertility कहते हैं. So subfertility is a quite better term to quote to a patient rather than infertility. और कुछ लोग infertility को sterility के साथ भी confuse करते हैं. Right. कि they can't reproduce at all. Right. So वो भी एक कौन चीज है जो कि उनके mental status पे quite impact डालती है. So this is a point of view which I have seen in patients. So मतलब I see that it is better we call them subfertile rather than infertile. Infertile. हाँ, so this is one more thing which I think we should change the way we tell the patients. Right. मेरे को जैसे एक और चीज आपसे मतलब what do you think in your opinion, जैसे patients आते हैं हमारे पास, what exactly like we counsel in our behalf. So what would be the ideal time for a subfertile couple? Not we have not any these physical factors or psychological factors, we'll discuss that. But अगर हमने वो नहीं diagnose किए हैं, just for counseling if we want to send, so what do you think, what ज़्यादा रोल का मतलब एक काउंसलर का आता है, या मतलब there is a psychotherapy involved, या मतलब we should send them to a psychiatrist, because these three levels are different, and telling a patient that she needs or he needs to go or they need to meet a psychiatrist might cause some hindrance for them to go. वो मतलब डरेंगे या वो हिचकिचाएंगे, हेजिटेट करेंगे और नहीं जाएंगे. सो मतलब हाउ डू यू थिंक एज अ डॉक्टर हमको उनको क्या बोलना चाहिए? मतलब 100% काउंसलिंग तो हमारी साइड से नहीं हो पाती है, उनकी मेंटल स्टेटस की है. सो व्हाट डू यू सजेस्ट? सी जब आप स्क्रीन करने लगते हैं एंड यू असेस कि हाँ कुछ चीजें फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस से रिलेटेड द कपल इज नॉट एबल टू कोप विद. And at that time of this when you have that threshold that you are not labeling the person, you still have subfertility in you, that sub infertility, where you can actually go ahead and you still have to break that news to them that this is, we have three roles. Like if you like, we can always have a discussion amongst us ki this couple is facing such problems. Depends on the type of referral you need to, whether you want us to let them know about the diagnosis and the prognosis as such, and in a way that they do not feel stigmatized or they don't feel despondent, or they don't have that aversive reaction to this problem of theirs. That can be counseled by the counselors as such. But when you send the patients to us, screening में आता है कि anxiety है, depressive features हैं, उस स्टेज पे जब आप एज अ ड्रग प्रिस्क्राइबर अगर हम एज अ साइकियाट्रिस्ट को भेजते हैं, तो देन ऑल्सो वी हैव टू चूज आवर ड्रग्स वेरी वाइजली, कि कोई भी ऐसी ड्रग हम ना कर रहे हैं, दें बेनिफिट रिस्क देखें कि उसकी इनफर्टिलिटी को और वर्सन ना करे हमारी कोई भी दवाई उस पेशेंट को या उस कपल में जिसमें भी अग्रीव्ड पर्सन है. और उसके साथ साथ ही वी कैन ऑलवेज सी दी डीप रूटेड कॉज, कि वो कॉजेज क्या एंजाइटी, डिप्रेशन या साइकेट्रिक कोमॉर्बिडिटीज या मेडिसिन की वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, विच इज मेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी. कोई फिजिकल कॉजेज आपने जो पैरामीटर्स रूल आउट कर लिए, उसके अलावा कोई साइकोलॉजिकल कॉजेज तो नहीं है इनफर्टिलिटी के. थिंग्स लाइक वजाइनिज्म, थिंग्स लाइक ट्यूबल स्पैस्म्स, ओव्यूलेशन अवॉइडेंस ऑफ इंटरकोर्स, या फिर deliberately trying to avert out the sperms at during that time, yeah, there is decreased sexual performance, any anxiety in the sexual performance of the couple, or they have decreased libido. At that time when you refer the patient to us, at that time हम उनके ड्रग्स के अलावा कि कोई चीज उनकी वर्सन ना कर दे इनफर्टिलिटी, ये सब भी देखते हैं कि ये क्या कॉजेज हैं, किस वजह से इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज आए हैं. क्या वो सब्सटेंस अब्यूज है इन दी मेल पार्टनर है, या क्या वो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या एनवायरमेंटली ऐसे कुछ इश्यूज हैं उनके घर में कि दैट कपल इज नॉट एबल टू ओपन अप विद ईच अदर. So there
I mean, at each step, from the diagnosis to the whole procedure of your infertility, the person can be referred to us, and depends on the situation, we can help the person out. And there are many other psychotherapeutic techniques which we can apply based on the couple. Okay, Whether so we need मतलब counseling जो है, counselor and psychotherapy and even a psychiatric, if these all three, they can be done by a single person also. मतलब right, वो as psychiatrist से ही शुरू हो सकता है. a psychiatrist is trained to psychoeducate, give the knowledge about the illness to the subject in concern, in our case the couple in concern. What are you facing through, and what are the implications of this in mental health conditions, and Okay, these are the concerns you already have. So we always have option to go for drug prescription, and along with that psychotherapy. We can go both hand in hand in that setting. And where is the role of counseling? Counseling will be again in hand in with that all. See, counseling would be more of giving them the idea of the prognosis of the illness, of the infertility per se as gynecological aspect, and educating them that it is not a stigmatizing thing. Then they can actually open up in initial few sessions. They can actually open up with us regarding their issues. That comprises of the whole building up of their rapport, confidence, and then we can go ahead. Right. Okay. So you talked about, आपने बात की थी psychological और physical factors जो कि सब fertility cause कर सकते हैं couples में. So there are such factors because बहुत बार हम miss कर सकते हैं. तो patients को जब भी हम उनकी history लेते हैं, तो we usually we ask about their sexual habits. Many people are not comfortable. बहुत लोग comfortable नहीं होते बात करते हुए. Because you know the Indian scenario, many people come with their families. There are either mothers या उनके father, mother-in-laws, and maybe. हाँ, so they might not be comfortable enough अपनी sexual history expose करने के लिए. But I think a lot of things उसी में भी rely करते हैं क्योंकि physical factor, because recently एक patient था जो मतलब last 4 years से सब fertility face कर रहे थे, and basically उनको sexual contact में ही problem थी. और वो reveal नहीं कर पाए हैं किसी को, and when they have come to me, they are telling that we were not able to talk to the doctor. हम बात नहीं कर पाए, हमें ठीक नहीं लग रहा था. And then they opened up and they were suffering from, one was suffering from vaginismus, और दूसरी जो उनके husband थे, he was suffering from erectile dysfunction. Right. तो मतलब he was telling that he has a fear of that he will fail. तो ये psychological जो उसकी एक impact कि एक anxiety है to perform. Exactly. Yeah, that is performing anxiety. He won't be able to perform well. So they have not had an intercourse in proper 4 years. So matlab that was the reason. And how do we, I mean, then in proper definition wise वो उस domain में ही नहीं आते हैं सब fertility के. हाँ, exactly, वो आते ही नहीं है basically. तो वो basically उनका contact की history ही नहीं है. तो वो कैसे उस category में आएंगे? So what the family is pressurizing that with this test कराइए, ये कराइए. So we have to actually take the psychological aspect. That's what जो आपने बोला उस time की, it is not just the causes of basic infertility या subfertility जो कि female या male में हो सकते हैं. बड़ी बार psychological issues होते हैं, anxiety issues होते हैं, बड़ी बार depression issues होते हैं. They feel depressed. They're not concerned. So it is both the things, and it is two-way. We have to rule out factors as well. और इन factors को diagnose करके उनकी psychotherapy बहुत ज़्यादा ही role important play करती है. तो in fact that's what I was like कि वो तो किसी भी state में जब आपको alarming signs दिखने लगे वो तभी आप refer कर सकते हैं. There is no time, there is no ideal time to do so. It should go hand in hand. मैंने उनको रेफर इसीलिए किया था बिकॉज जितने एक अच्छे से एक काउंसलर या साइकोथेरेपिस्ट समझा सकता है, मैंने उनको बेसिक चीज समझा दी कि ये चीज की प्रॉब्लम है, आप सब फर्टाइल नहीं हैं. तो आगे उनको विश्वास दिलाना कि दैट एंजाइटी शुड नॉट बी देयर व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग, और दैट counseling the lady about vaginismus and telling that nothing would happen. वो थोड़ा बहुत बार repeated तौर से she need to go to sessions and he also need to go to sessions. Because these things are correctable. मतलब without drugs कभी कभार drugs की जरूरत भी पड़ सकती है. Right. But majority time it helps with psychotherapy or even with and counseling. with basic things like deep breathing and progressive muscle relaxation. Things like this have been very useful. बहुत useful रही हैं. हमने कुछ couples को
उनकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे ही जब शुरू किया या So what do डीप you ब्रीथिंग में किया? suggest? आप क्या मतलब for example if she has vaginismus and for that lady, according to you, how do you manage her like in case of a If patient of vaginismus case comes, I mean, a lady with vaginismus comes to me, हम उसकी डिटेल हिस्ट्री लेंगे कि what that from where that fear emerged from, वो okay fear मतलब आया कहाँ से है, कि the अच्छा maybe concept that of is मतलब कुछ कहीं से आया होगा. I It mean is not something which is there in intercourse the का, brain. या she is not experienced, उसने पढ़ा नहीं है, एक stranger है. अब Okay. things like arranged marriage में बहुत बार होता है कि a Okay. person is a stranger और एकदम Yes. first उनका हाँ जी, जब कोहैबिटेशन का एक्सपीरियंस ही होता है, उसमें vaginismus होता है, या there had been a past bad experience of theirs, Okay. they have had gone through harsh sexual abuse or things like that. So Okay. So you generally need to take such this people out. also, I mean those kind of private histories from childbirth as well. Okay. तो अच्छा. उससे बहुत कुछ क्लू मिलता है कि vaginismus क्यों हो रहा है, कि उसका क्या बेसिक रीजन, डीप इनग्रेन्ड रीजन हो सकता है किसी भी इंसान के साइकोलॉजिकली दिमाग में. देन वी ऑलवेज हैव रिलैक्सेशन टेक्निक्स, deep muscle, deep breathing, progressive muscle relaxation for such females. They can practice that और उनको बहुत फायदा मिलता है इसमें. और उससे भी पहले interpersonal relationship with the couple, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आई गेस. सेक्सुअल नॉलेज, सेक्सुअल हिस्ट्री से कहीं ज्यादा इंटरपर्सनल हार्मनी ज्यादा हम देखते हैं rather than directly jumping onto the sexual history or sexual habits. जब तक they know each other, they are comfortable with each other, only then they can go for it. And then many couples feel कि हमको, because we need to conceive, and only then they try, and they do not enjoy each other on a sexual context, rather than they have this pressure under pressure from the family that we have to perform, and this needs to be turned into a pregnancy. तो वो vaginismus को और बढ़ा देता है at times. ऐसे भी patients आई हैं मेरे पास. जी. Okay. And what about मतलब males में, if we have a common thing called which is erectile dysfunction or premature ejaculation. So how do you manage these patients? Like क्या मतलब how do you communicate with them? What do you tell them besides the medicines which are secondary? What about the first part? इसको इनको कैसे आप करते हैं? इनका भी starting में the relationship with the female, है ना, after with the normal romantic relationship going on to slowly going ahead with the sexual intercourse. Not ऐसे नहीं कि आपको प्रेशर है, आपको प्रेगनेंसी चाहिए, सो आप इस चीज को उस तरह एक नॉर्म की तरह लें. एक फीमेल को आप अप्रोच कर रहे हैं, अपनी वाइफ को अप्रोच कर रहे हैं, इट इज अ procedure कि आप धीरे धीरे you approach your female partner, and then slowly you make her relaxed. Then only then you can actually go for it, go for the main act. कि तो उस तरह समझाते हैं, और ये समझाते हैं कि जो आपके सामने है is a person जो आपको समझती हैं, वो अंडरस्टैंड करती हैं. So there is nothing to be ashamed of. और उस टाइम पे कोई भी एंजाइटी लेने की या परफॉर्मेंस एंजाइटी के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है. इट इज नॉट कि आपका ये हर एक्ट सक्सेसफुल प्रेगनेंसी में ही एंड करे. सो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू लेट देम नो. हाँ जी, ठीक है. apart from medicines, these are the few things which can go. We can always educate them कि अगर sexual history के अलावा substance abuse की history है कि मेल्स, तो कि अवॉइड करें कि कोई मेडिकेशंस ऐसे कोई साइकियाट्रिक मेडिकेशंस ले रहे हो जो उनकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को वर्सन ना कर रहे हो. ये भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं उस एस्पेक्ट में, अगर होलिस्टिकली देखें तो. हाँ जी. एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना था कि मतलब हाउ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, मतलब जब हम फार्माकोलॉजिकल थेरेपी स्टार्ट करते हैं, इवन फॉर दैट मैटर हम भी स्टार्ट करते हैं बहुत बार, तो हाउ डू यू गो, आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं कि वो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी अल्टीमेटली वही ना मतलब सब फर्टिलिटी में एक रोल प्ले कर जाए, मतलब रेज्ड हार्मोन्स कर दे जैसे प्रोलैक्टिन या फिर डिप्रेशन
तौर से थोड़े से डिप्रेसिव मूड या मूड स्विंग्स ला दे, तो वो उन दोनों का बैलेंस कैसे मेंटेन करना है कि मतलब हमें फार्माकोथेरेपी भी अगर देनी है। सी उस टाइम पे हम कपल्स के साथ हम बात करते हैं कि वी डिस्कस इट आउट कि हम कैसे इस चीज को हम आपको क्या ज्यादा मतलब जरूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि बेनिफिट्स प्रोज कॉन्स दे देते हैं हम हर मेडिकेशन के, और वो उसका इम्पैक्ट ऑन द इनफर्टिलिटी। एंड देन वी कैन ऑलवेज आस्क द फैमिली कि आप डिस्कस करें और हमसे बताएं कि क्या आपके ये सिम्टम्स इतने सिवियर हैं, और वो हमें भी दिख जाते हैं कुछ हद तक एग्जामिनेशन में कि इतने सिम्टम्स सिवियर हैं कि अगर फीमेल इतनी एंजाइटी रहेगी, उसको इतना डिप्रेशन रहेगा, तो आगे इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में भी हिंड्रेंसेस आएंगी उनको, कि दे नीड टू वे कि सिम्टम्स की वजह से ही इनफर्टिलिटी और वर्सन ना हो जाए, क्योंकि स्ट्रेस ऑल टुगेदर हार्मोनल लेवल्स को भी डिसरप्ट करेगी। कि आपको क्या देखना है कि अभी उस टाइम पे इलनेस ही इतनी सिवियर है कि दवाई देनी पड़ेगी, या इलनेस आप मैनेज कर सकती हैं, सो वी कैन गिव यू साइकोथेरेपी सेशंस। तो उस हिसाब से हम ड्रग टाइट्रेट करते हैं और हम उनको समझा के रहते हैं कि ये इश्यूज रहेंगे, एंड हम ऑलवेज डॉक्यूमेंट करते हैं कि इसे ये इश्यूज रहेंगे कि प्रोलैक्टिन रेज होने के, या फिर teratogenic side effects of risk factors of certain drugs, so that the gynecologist or infertility specialist in place is also aware of it, उनके लाइजन में फिर उस चीज को कर सके। और एक और चीज, जैसे कुछ डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स, राइट, ठीक है, साइकियाट्रिक इलनेसेस हैं व्हिच आर नोन टू अस लाइक मैनिया डिप्रेसिव डिसऑर्डर, राइट, स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि डायग्नोस्ड एक स्टेट्स हैं, एंजाइटी या फिर डिप्रेसिव स्टेट्स जो भी हैं, इन केसेस में अगर मतलब पेशेंट हमारे पास आता है, मतलब व्हाट डू यू थिंक इन क्या ये जो मेडिसिन इन सब के लिए दी जाती हैं, वेदर फॉर अ मेल और अ फीमेल, तो डज इट lead to subfertility in some extent, like is there some duration or some koi concentration of the drug hai like which matters, or and how do we cope when such patients come to us, matlab jinko ye already diagnosed hai and they're already taking some psychiatric medications, okay, or maybe history in the past, but बार ऐसा भी होता है पेशेंट ने डिप्रेशन की हिस्ट्री ली होगी and she was on something और अभी नहीं है, but now he's coming up to us at 40 years of age, like I have one patient, she has a history of depression in the past, तो उसके बाद अब जाके लेकिन she has come to me for IVF and उनको हिस्ट्री है, but मतलब what do you think उसका क्या इम्पैक्ट रहा होगा सब फर्टिलिटी में, एंड क्या वो भी एक कारण रहा होगा, लाइक एंड हाउ? जैसे आपको भी मालूम है कि जो न्यूरोकेमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं, उनका HPA एक्सिस पे रूल है, एंड देन पर से हर मेडिकेशन का डोपामिन और प्रोलैक्टिन लेवल्स पे भी रहता है। सो वी नीड टू सी कि उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आपको वो फीमेल प्रेजेंट की है, उसका HPA सारे एक्सेस पे जो आपके हार्मोनल एसेस हैं और प्रोलैक्टिन लेवल कैसा है उस पर्टिकुलर टाइम पे व्हेन शी कम्स फॉर द ट्रीटमेंट। देन वी ऑलवेज हैव कि अगर ऑनगोइंग ट्रीटमेंट चल रहा है, लेट्स सपोज साइकोसिस स्किज़ोफ्रेनिया चल रहा है और एंटीसाइकोटिक्स पे है जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन इंक्रीज हुआ है, वी ऑलवेज हैव ड्रग्स व्हिच कैन डिक्रीज द हाइपोलैक्टिनेमिया, बट वी डोंट हैव टू स्टॉप देम, हमको उसको बंद नहीं करना, मतलब देखिए अगर वो सेटल्ड है, उसकी साइकोसिस स्टेबल है, वी कैन फर्दर डिक्रीज द डोज, और वो देख सकते हैं जब सब फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट जब शुरू होती है। एंड अगर वो ऐसे फेज में आई है कि वो अपना ही नहीं ध्यान रख पा रही है, तो आई गेस वो हस्बैंड वुड आल्सो नॉट बी इंटरेस्टेड कि सब फर्टिलिटी के फर्दर ट्रीटमेंट पे जाए, या वी कैन प्लान फॉर प्रेगनेंसी। अगर वो स्टेबल ही नहीं होगी, वो एक्चुअली आपके पास आएगी ही नहीं कि टू प्लान टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट। आते हैं ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो कि लाइक फॉर अ लॉन्ग टर्म दे आर ऑन मेडिसिन्स, ठीक है, सो वी नीड टू मेक अ रेफरल टू यू कि आप डिसाइड कर लो कि वेदर डोज रिडक्शन चाहिए कि एक साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस भी चाहिए उस फीमेल की उस टाइम पे, other than just the dose reduction. You advise कि at the start of treatment एक उनको रेफरल दिया जाए to start to the psychiatrist, exactly, तो कि हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके और पेशेंट भी थोड़ा प्रिपेयर्ड हो, प्रिपेयर्ड रहे, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट प्रेजेंट करते हैं दे आर ऑलरेडी इन देयर फर्स्ट ट्राइमेस्टर कि हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे थे, कहीं और से साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा है, अब द ड्रग आई हैव गॉट टू नो कि ड्रग की टेरोजेनिक और हार्मफुल रिस्क्स हैं मेरे बच्चे में, तो नाउ व्हाट डू आई गो अबाउट,
और फिर वही वॉल दोबारा रोल आउट हो जाती है फॉर level 1 and level 2 scans by the gynecologist just to be very तो cautious. मतलब प्रीनेटल तो अगर इसी स्टेट पे अगर हमारे पास फीमेल्स आने लगे और इस लाइसेंस से, तो वी कैन गिव बेटर आउटपुट्स फॉर द पेशेंट्स. मतलब इट इज समवट की एक प्रीनेटल काउंसलिंग जैसे कि जैसे हमारे पास पेशेंट आता है प्रीनेटल काउंसलिंग के लिए, अगर हमें लगता है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं व्हिच आर गोइंग टू कैरी ऑन और व्हिच आर गोइंग या आपको स्टार्टिंग में ही कुछ मिल गए हैं रीजंस की, या मेडिकेशंस दिख गई हैं साइकेट्री की, या आपको कपल से बात करके ही कुछ चीजें ऐसे दिख गई हैं कि एक साइकेट्रिक रेफरल प्रीनेटली हो जाना चाहिए, तो वो भी एक इनिशिएटिव अच्छा रहता है कि देन यू कैन हैव अ फर्दर लॉन्ग रन में आपको भी पेशेंट कपल कोऑपरेट कर पाते हैं अच्छे से. हाँ ठीक है. और मुझे एक और चीज आपसे पूछनी थी, लाइक is there any role of giving folic acid to these patients who are on psychiatric medicines? Right. हाँ जी, कहा जाता है कि जब हम मेडिकेशंस जैसे कि जो मूड स्टेबलाइजर या जैसे कहते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी होते हैं, वो उसमें न्यूरल ट्यूब साइड इफेक्ट्स रहते हैं, तो इट इज रिकमेंडेड हमेशा उनके साथ फोलिक एसिड सप्लीमेंट में दिया जाए. बट मतलब ये सिर्फ आप टेरेटोजेनिक साइड इफेक्ट्स के लिए बेसिकली प्रेगनेंसी जब हो जाएगी. बोल रहे हैं कि जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या जब वो नॉर्मली भी अगर आपकी मेडिसिन ले रहे हो जैसे तब भी देना है फॉलिक एसिड, या जब भी वो हमारे पास एज अ ट्रीटमेंट जब हमारे पास कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती है, तो वी टेंड टू चूज ड्रग्स की जो उनकी इनफर्टिलिटी में हिंड्रेंस ना दे या उनकी प्रेगनेंसी में सेफ मानी जाए. अच्छा, तो इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि हम स्टार्टिंग से ही फॉलिक एसिड दें. ये ना कि जब वो एक्सपोज्ड हो, उसका फीटस या उसका बच्चा एक्सपोज्ड हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उस सब टेरेटोजन से. सो दैट्स व्हाई वो हम शुरू से ही करते हैं, बट द बेसिक आइडिया इज कि टेरेटोजेनेसिटी अवॉइड करनी होती है. Okay. And one more question, like if like maniac depressive, I had one patient जिनको maniac depressive psychosis था and वो treatment ले रहे थे last 14 years से. उनके family में actually थी, उनकी maternal family में that aunts and uncles and even mother was suffering from that. And previously in life he was not having any such history like before marriage. Now he came up to me as infertile, मतलब subfertility, wife को भी थी and she was also suffering from depression. तो she used to take वो मतलब medicines लेते थे for sleep. Benzodiazepine ले रहे थे and मैंने उनका रेफर कराया, तो the dose was continued as to be same, though I definitely added folic acid. तो अब वो folic acid तो ले रही, but क्या ऐसा होता है कि कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिसके लिए हमें प्रीनेटली पेशेंट को बताना पड़ेगा कि दीज कैन बी कैरिड टू देयर चिल्ड्रन, लाइक दैट मेल हैड अ हिस्ट्री कि उनकी फैमिली में थी, तो क्या दिस कैन बी सम बेसिस ऑफ अ प्रीनेटल काउंसलिंग टू द कपल? एग्जैक्टली, इसमें एज सच इनफर्टिलिटी में नहीं आता है या प्रीनेटल काउंसलिंग कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि इसके दादा को था, इसके पापा को था, अब इसके लिए कुछ करें क्या. बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है कि इलनेस जेनेटिकली ट्रांसमिट होगी और सिम्टम्स आएंगे, बट प्रोबेबिलिटी नहीं भी हो एक्चुअली बहुत सारे लेकिन केसेस ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी में वो उसमें नहीं लैंड अप करते, उनको सिम्टम्स नहीं आते. सो वी कैन ऑलवेज गाइड देम कि आपको कॉशियस रहना है इन सिम्टम्स के लिए, एंड यू कैन जितनी जल्दी डिटेक्ट करेंगे अर्ली सिम्टम्स को उतनी जल्दी वो कंट्रोलेबल या ट्रीट हो पाएगी. बट ऐसा नहीं है कि जैसे आप जेनेटिक काउंसलिंग की तरह की बात नहीं है कि ये ट्रांसमिट होगी ही होगी. नहीं, बट व्हाट आर द लाइकली थिंग्स कि क्या व्हाट कुड बी द परसेंटेज, बिकॉज मेरे पास जो पेशेंट था coincidentally they were subfertile couple and they both were having a history, right? So it was something जो मुझे डील करना था even for prenatal also. See, risk रहेगा, as their subfertility रिस्क बहुत ज्यादा हाई रहेगा. जैसे स्टडीज रहती है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ज्यादा होता है, या पेडिग्री में लीनिएज में दोनों मदर फादर की हिस्ट्री में रहा है, चांसेस ज्यादा रहते हैं. बट देन दैट उसके बावजूद इट इज अप टू द कपल टू डिसाइड कि उनकी एज ऑफ ऑनसेट पे किस एज ऑफ ऑनसेट में इलनेस होगी, कितनी सिवियर होगी, कंट्रोलेबल होगी नहीं होगी. प्रेडिक्टिव वैल्यू कम है बट डेफिनेटली रिस्क रहता है. रिस्क ऑलवेज हाई है ऐसे सिनेरियो में. इस विग्नेट में रिस्क हमेशा हाई है हमारे गोइंग टू बी, मतलब जो बेबी बॉर्न होगा उसमें.
पर उसका इस तरह से हम एक्सप्लेन जरूर करें कि that should not hinder your planning of pregnancy and your the childbirth, because अगर ये चीज किसी एज ऑफ ऑनसेट पे आता है तो देर आर कुछ जेनेटिक मेकअप्स में ऐसा दिखाया जाता है कि जिस मेडिकेशन में मतलब इंडिविजुअल जैसे मदर जिस मेडिकेशन पे स्टेबल है या फादर जिस मेडिसिन पे स्टेबल होता है, बहुत चांसेस होते हैं कि आगे जाके वही साइकेट्रिक या मेंटल इलनेस चाइल्ड में हो तो वो उसी ड्रग से रिस्पॉन्ड कर जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर फादर को फ्लॉक्सिटिन एंटी डिप्रेसेंट चली है तो चाइल्ड को बहुत चांसेस है उसी से रिस्पॉन्स आएगा और वो उसी पे हम उसको ट्रीट उस टाइम पे कर सकते हैं when the child grows and when he has those symptoms. We can always counsel that. There was this doubt that like this couple only I'm telling, right, agar this ex couple they both have this problem, like the husband has an issue, so can this affect their physical psychological factors also, because he was having fear of ejaculation होगी and he was telling that there लोग आते हैं कि हमारे दोनों की फैमिली हिस्ट्री है मेंटल इलनेस की कि हमारे बच्चे में ये ना हो, तो वो स्ट्रेस एड ऑन इफेक्ट होगा सब फर्टिलिटी के लिए फॉर देम टू फर्दर ट्राई फर्दर कंसीव एंड देन ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर उनकी सब फर्टिलिटी में भी रहेगा, इन देयर प्लानिंग फॉर द चाइल्ड में भी रहेगा एंड फर्दर जब होगा तो ये एप्रीहेंशन हमेशा ही उस कपल में रहेगा एज पेरेंट्स की हमारे बच्चे में कभी वो सिम्टम्स रहे तो रहे ना या कुछ इस तरह का. राइट, ठीक है. आई थिंक मेरे क्वेश्चंस तो काफी हो गए आपकी साइड से. एनीथिंग यू वांट मी टू टेल यू? राइट, आई थिंक हमने जब बात की सब फर्टिलिटी की तब जैसे हमने डिस्कस किया तब वी हैव अ गैप और हम काउंसलिंग के लिए या साइकोथेरेपी के लिए भेजा जा सकता है. जब आपके पास डिक्लेरेशन पूरी आ जाती है कि कपल इनफर्टिलिटी है और श्योर अब इनफर्टिलिटी है एंड देन यू माइट हैव टू गो विद स्टेप्स ऑफ आईवीएफ ट्रीटमेंट, तो तब क्या रिएक्शंस आपके सामने साइकोलॉजिकली दिखते हैं पेशेंट के या कपल के साथ, और आप उस टाइम के क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट ऑन द एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस कि जब आप ब्रेक करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में तो हाउ डू दे रिएक्ट टू यू? Actually, this is something which is very common. When we tell them, अगर तो we tell them like कुछ block है, tubal block है, the सबसे thing जो which comes to their mind is the non-acceptance thing, which is the first. Everything is happening and correct. We are living together. हम साथ रहते हैं, हर चीज ठीक है. Then why are not we getting pregnant? ठीक है, this is the first question when a couple puts to us, and then we start treatment. हम उसकी investigation शुरू करते हैं. We start with egg, then we start with the tube, and फिर उसके बाद यूट्रस पे आते हैं. और कभी बड़ी बार ऐसा होता है कि फिर अगर सपोज कोई चीज ब्लॉक आ गई, एक चीज में प्रॉब्लम दिख गई, देन पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि मेरे को क्यों हुआ, like why me, why PCODs, I am suffering from PCOD, why I am suffering from endometriosis, why am I suffering from this problem, so then again why they start मुझे ही क्यों भगवान ने मुझे क्यों हुआ. हाँ, so this question comes up, and then we have to explain to her that this is the percentage of women जहाँ पे भी आप रह रहे हैं इतना परसेंटेज इफेक्ट होता है, और यू नो इट इज अनफॉर्चुनेट कि आप उस परसेंटेज में आ रही हैं लैंड अप कर रहे हैं. ऐसे हाँ एग्जैक्टली, और ऐसा भी है कि जो बाकी परसेंटेज के लोग हैं वो उसमें नहीं आ रहे. सो इट इज जस्ट अनफॉर्चुनेट, इट इज जस्ट अ फैक्टर विच इज कोइंसिडेंटल, और कोई ऐसा नहीं है. देन ट्राई टू इवेलुएट उनकी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री. अगर कुछ फैक्टर निकल जाए then we come on to them कि हाँ it is because it was there in your family. So this is causes. उनके causes भी acceptance कम होती है. जब cause acceptance हो जाती है, males को भी पहले I have seen now in my career, maybe in 3 to 4 years I've seen, पहले males accepting नहीं थे. They were not coming out for doing their investigation, and their families were also not supportive. अब change हो गया है scenario. Males are actually coming forward. They are doing their test on the same time when जब उनकी wife की investigations हो रही हैं. That is a very good thing, a very good change which I have seen, and telling them that this is a problem, so they are accepting. अभी भी कुछ religions ऐसे हैं. I'm specifically telling that there are some religions that they don't support that the male is having less counts or azoospermia है या zero counts हैं, तो acceptance levels कुछ में नहीं है.
राइट तो दे ट्राई ऑल मीन्स, वेदर टैबलेट्स या इंजेक्शंस या कोई भी और जरिया जिससे कि उनका काउंट्स बढ़ सके, कोशिश करते हैं कि दे हैव देयर ओन बेबी बिकॉज यू कांट एक्सेप्ट एंड समथिंग आल्सो इज समथिंग अगेंस्ट देयर रिलीजन, सो दे गो राइट अहेड विद प्रेफरिंग टू हैव देयर ओन। सो वो भी एक स्ट्रेस फैक्टर आ जाता है उनके ऊपर कि उन्हें ही अपने से ही बच्चा चाहिए from the, you know, the same husband has to be there, same, they don't have to use a donor, तो वो भी एक प्रेशराइजिंग चीज आ जाती है। राइट दैट डेफिनेटली आई थिंक उनके मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता ही होगा। टू और एड ऑन टू, हाँ जी बोलिए। हाँ मतलब यू कैन गो हेड जो आप बता रहे थे। टू समराइज द साइकोलॉजिकल रिएक्शंस, आई थिंक इसका एक बहुत अच्छा एक तरीका होगा कि जब हम किसी की डेथ होती है, जब हम ग्रीव करते हैं या मोर्न करते हैं, देयर आर सर्टेन स्टेजेस वी गो थ्रू, वो ही सेम स्टेजेस जैसे मैंने अभी Exactly. आपसे डिस्कस किया वो गो थ्रू करते हैं। इसमें डेथ उनकी ड्रीम्स की होती है, कि मदरहुड की, फादरहुड Correct. की, कि सबसे पहले Correct. आएगा डिनाइल, कि मैं Correct. इनको Denial. एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता। देन एंगर, जैसे आपने कहा कि भगवान ने मुझे ही क्यों चूज किया, मेरे ही ट्यूब्स क्यों ब्लॉक्ड हैं, या मुझे ही एंडोमेट्रियोसिस से क्यों डायग्नोसिस हुई, क्या मुझे पनिश किया जा रहा है, क्या Correct. मेरे Correct. डीड्स की वजह से ऐसा हो रहा है। देन दे ट्राई बार्गेनिंग, डॉक्टर साहब एक बार और Yeah. चेक कर लीजिए, क्या पता Correct. एक बार Absolutely. सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं हाँ जी कि ऐसा ही ऐसा होता है। ऐसा नहीं हो सकता। फिर डिप्रेसिव फेज आता है उनका कि मेरी वजह से हुआ, गिल्ट कि मेरे में ही सब खामियां हैं, मैंने ऐसा किया है, इसलिए ये सब मेरे साथ हो रहा है, कि आई एम फ्यूटाइल टू माय हस्बैंड आल्सो, फ्यूटाइल टू माय फैमिली आल्सो। और फिर जब वो एक्सेप्टेंस लेवल आता भी है, आई थिंक बहुत टाइम पे ये तब तक नेगेटिविटी बहुत आ जाती है। मैच्योरली डील भी नहीं होता है, कि सेपरेशन तक की बात आ जाती है, डिवोर्स, रीमैरिज, ऐसी बातें आ जाती हैं। तो आई थिंक बहुत कम कपल होते हैं जो इससे बहुत साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस के साथ, मैच्योरिटी के साथ डील करते हैं, या उनको उस चीज को एक्सेप्ट कर पाते हैं। एंड थिंग्स लाइक जो आप कह रहे हो कि फिर जो नॉन बायोलॉजिकल वेज हैं उस पे उनको रहता ही है एंड तक, कि हम इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो बहुत सारे डिवास्टेटिंग रिएक्शंस मैंने देखे ही हैं, बट इसके अलावा मैंने बहुत सारे साइकेट्रिक कोमॉर्बिडिटीज भी देखे हैं, कि डिप्रेसिव फेज आ जाना, कि मतलब एक पार्ट ऑफ लाइफ अगर रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन एक पार्ट ऑफ लाइफ है, उनका कलर कर जाता है पूरी लाइफ को, कि उनकी कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, सेल्फ स्टीम हो जाती है, कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं वर्थलेस हूँ, गिल्ट फीलिंग्स आने लगते हैं कि मेरी वजह से मेरे पार्टनर को भी ये सफर करना पड़ रहा है, या वर्थलेस में कि जीना ही बेकार है इससे अच्छा, या एंजाइटी, जैसे आप कल्चर की बात करें, रिलीजन्स की बात करें, फियर ऑफ कि मुझे कोई अबैंडन होने का, कि मुझे छोड़ ना दे, मेरी शादी ना टूट जाए। पीपल हैव कम टू अस लेवल टू अस आल्सो, कि जो थोड़ी साइकोटिक लेवल पे आ जाते हैं, कि डर लगता है कि ये मुझे छोड़ देंगे, ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, या ये मुझे मारना चाहते हैं, कि मैं इस तरह की भी बहुत सारी सिचुएशंस हमारे पास आती हैं जब लोग कहते हैं। फिर अब अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते हैं तो वो डिप्रेशन का कोरिलेट फीमेल्स में भी सब्सटेंस अब्यूज के लेवल में आ जाता है। फिर स्लीप पैटर्न्स इतने एराटिक हो जाते हैं कि स्लीप ही नहीं मिल पा रही है इंसान को। इंसान की प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि कपल दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, उनकी पर्सनालिटी अपने आप में क्या है, और वो कैसे एक दूसरे से कोप करते हैं, एंड देन विद दिस न्यूज ऑफ इनफर्टिलिटी उससे कैसे कोप करते हैं। तो आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब साइकेट्रिस्ट के पास आया जाता है, नॉट ओनली कि सबफिलिटी, ये ही नहीं कि सिर्फ सबफर्टिलिटी है या इनफर्टिलिटी है या क्या ड्रग्स चूज कर रहे हैं। आई थिंक शुरू में क्योंकि बहुत इनिशियल टाइम ही होता है, जो पहली बार वो साइकेट्रिस्ट के पास कपल आता है तो उनको वही स्टिग्मेटाइजिंग लगने लगता है, फिर देन ओपनिंग अप में इशू होता है, उसके बाद कपल में एक कपल डिनाइल मोड पे रहता है और दूसरा एक्सेप्टेंस पे होता है, उनको सेम लेवल पे लाना, फिर मेकिंग देम रियलाइज कि आप कर इस चीज के ट्रीटमेंट के साथ फैमिली थेरेपी, कपल थेरेपी, या आपके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, जैसे आपके तो नेगेटिव फीलिंग्स इतनी ज्यादा हावी हो जाती हैं कि कुछ सोचने की उस टाइम पे या ट्रीटमेंट ऑप्शंस को अपॉर्चुनिटीज की तरह ले ही नहीं पाता है कपल। तो वो उस चीज से उभार पाना, उनको दोबारा मोटिवेट कर पाना, दोबारा रीस्ट्रक्चर कर पाना, कि एक आईवीएफ साइकिल आपका अनसक्सेसफुल रहा
तो वापस बिल्डअप करना, नहीं मे बी नेक्स्ट साइकिल में आपकी प्रेगनेंसी हो जाए। फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात की, एक साथ में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, ऊपर से आईवीएफ के इतने इन्वेजिव प्रोसीजर्स चल रहे हैं। आई थिंक बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं और वो इंडिविजुअल पे बहुत फर्क होता है जब हमारे पास आते हैं। अगर हम ऐसे टॉपिक की तरह डिस्कस करें तो आई थिंक बहुत विग्नेट्स को नहीं, हम स्पेक्ट्रम को नहीं हम डील कर पाते हैं। जैसे आपने मुझे कुछ इंडिविजुअल्स के बारे में बताया, उस तरह की बातें हैं, उस तरह के पेशेंट्स अगर हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे कपल आया XYZ प्रेजेंटेड टू अस इस तरह, तो वो और बहुत ज्यादा इंसाइट्स मिलती हैं, ऐसे टॉपिक को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर पाते हैं। हाँ, वो बात आपने ठीक बोली कि बेसिकली जब आप एक पेशेंट को सबटाइटल डायग्नोज करें, उसको आप पुट करते हैं, किस तरह से गो थ्रू करेगा, उसमें उसका मेंटल लेवल कितना स्ट्रांग है, हाँ, कितनी वो उसकी साइकोलॉजिकली पहले कितना मैच्योर है कि उसको हैंडल कैसे करेगा। क्योंकि कुछ लोग, बहुत से पेशेंट ऐसे हैं कि बहुत पैनिक करते हैं। हाँ, ठीक है, लाइक बहुत ही पैनिक करते हैं कि बहुत उनको क्या पैनिक कि होगा, पूरे मतलब दिन अब उनको इस चीज का रहता है कि ये टेस्ट आपने कर लिया, एनीथिंग एल्स, कोई और परहेज करना है, परहेज कुछ करना और है, हमें दवाई लेनी है, राइट, कोई और चीज तो हमें करनी चाहिए जिससे ये पॉजिटिव आ जाए। मतलब दे आर सो इनटू कि उनको पॉजिटिव आना ही आना है। जी, तो वो उनकी साइकोलॉजी बन गई है और वो उसको देख नहीं रहे कि वो एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं। राइट। एट टाइम्स आपके जितना मैंने देखा है कि लोग ऐसे भी आते हैं कि जो सर्जिकल करेक्टली ही करेक्ट हो सकती है चीज, जो वो चीज निकाला ही सर्जिकली ही रिमूव करनी पड़ेगी, कि मेडिकेशन से तो से कम हो सकता है क्या, कि एक फियर ऑफ सर्जरी भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। हाँ, फियर ऑफ सर्जरी रहता है। एंड देन जैसे डिप्रेशन है, वो तो जैसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया कि एक्सेप्टेंस और डिनायल की फेज के बाद जब वो डिप्रेशन में जाते हैं तो वो और ऐड करता है सब फर्टिलिटी में, क्योंकि दैट विल बी मोर नेगेटिव, वो और नेगेटिव होगा पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि अब एक तरफ से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दूसरी तरफ से पेशेंट नेगेटिव है, तो दैट विल नॉट, दैट वो एकदम फ्यूटाइल हो जाएगा, हमारा सक्सेस तो आएगा ही नहीं। और लास्टली जैसे आपने आईवीएफ की बात की, तो आईवीएफ की कॉस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सब ऑल पीपल कैन नॉट अफोर्ड, they lose their dreams कि अब तो they can never be mother or they can never be father because they don't have so much money. So वो भी एक फैक्टर आ जाता है बीच में। Then they किसी तरह से they have that mental status कि वो कोप कर जाएं, they come ahead with 2 or 3 months और 4 months के बाद जब आप पैसा जोड़ लेते हैं तो उसके बाद आते हैं। तो मतलब it depends कि पेशेंट कैसे कोप कर रहा है। पर बड़ी बार पेशेंट्स हार मान लेते हैं बिकॉज कॉस्ट भी बहुत है, आईवीएफ का प्रोसीजर भी लंबा है, ठीक है, एंड they can't bear those costs because everybody is not equivalent enough कि वो अफोर्ड कर सके। हर किसी के अभी हमारे पास हर एक उसमें पॉलिसीज में नहीं है, सब कुछ नहीं है हमारे पास आईवीएफ को प्रोवाइड करने के लिए। एंड ऑब्वियसली देयर आर हाई एंड प्रोसीजर्स लाइक रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं या बार बार आईवीएफ फेल हो रहा है, so those are other factors which add to the depression. We have got pregnant, still we are not able to carry on the pregnancy. So there are multiple levels at which subfertility plus डिप्रेशन और एंजाइटी आप कह लें, जो भी मेंटल हेल्थ स्टेटस है, वो बात करना बहुत जरूरी है एज अ डॉक्टर, एज अ गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो एज अ साइकोथेरेपिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट, फॉर अस टू मेक देम कॉन्फिडेंट इनफ कि आप कर सकते हैं एंड इट विल बी गुड ओनली। मतलब इफ यू थिंक पॉजिटिव एंड इफ यू थिंक करेक्टली एंड यू अंडरगो ट्रीटमेंट फॉर बोथ ऑफ दीस थिंग्स, आपका ठीक हो जाएगा। बट यू विल हैव द पेशेंस कितनी है आप में, वो भी बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। एंड देन अगर हम नॉन मेडिकल जैसे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट नहीं भी चल रहा है और डिप्रेशन और एंजाइटी फीचर्स इतने हैं, तो आई थिंक वो भी आपके हार्मोनल एसेस को हिंड्रेंस देता होगा, रादर देन कोपिंग अप विद द पर्सनल टच के अलावा उसमें भी आपको बहुत रहता होगा कि साइकिल्स और इरेटिक हो जाते होंगे। तो हाउ डू यू गो अबाउट इट? मतलब बड़ी बार पेशेंट्स आते हैं, वी हैव पेशेंट्स फ्रॉम द आईटी सेक्टर और बियॉन्ड दैट आईटी आल्सो, इवन फ्रॉम आवर प्रोफेशन आल्सो, many couples who are studying till now, they are into medical treatment, medical education, or they are into business sector, entertainment side, or they have crossed the age of 30, then they have this time limit set कि 1 साल में प्रेगनेंसी होनी चाहिए, राइट, दे हैव दैट, खुद ही अपने ऊपर प्रेशर लेते हैं, मतलब nobody is asking them, but they will think कि
we have Right. to do it because the age is advancing, and then it will create problems. So they have kept a timeline. By 35 they should be pregnant. So that adds to their anxiety, that adds to their stress, and that stress indirectly उनकी mental health को affect कर रहा है. So ऐसे couples तो मैंने बहुत देखे हैं. So we need to just tell them that, and I have seen even couples who try for just 2 or 3 months, or they are married for 4 years. Since they are working, so they don't try much, and they don't try for pregnancy basically. तो वो 3-4 महीने के बाद ही they come up and they proactively ask you कि I think I'm not getting pregnant, and what could be the reason. So they are proactively coming to us. ऐसे Right. patients भी हैं जो Right. सब fertility कैटेगरी में नहीं आते, नहीं है, but but they think, want they overthink. They overthink Right. that they are subfertile, and they come for tests and investigations. So they, for these kind of patients, सबसे ज़्यादा रोल I think उनको psychotherapy का ही आता है कि उनको समझाना कि आप बहुत ही to fast जा रहे हैं. de-label them कि आप नहीं हो सब fertility group में Yeah. is a big challenge, I guess. Yeah, you have to tell them, you have to, but still they are so enthusiastic कि मुझे investigations करानी है, कि कल को कोई और चीज निकल गई तो time चला जाएगा, and then Right. I have less time left. So they are very proactive in testing Right. themselves, and their husband also are very proactive. और वो treatment में भी बड़े proactive होते हैं. Like if they've tried for 3 months, they'll tell, okay, next time we can try with tablets. वो खुद ही बोल देते हैं, because they are different kind of people. हर एक type का patient आता है, अलग अलग तरीके का. कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो पिछले 5-6 years से naturally ही try कर रहे हैं, और फिर भी they are not able to accept कि भाई that is subfertile couple. So there are different categories of patient we get, और किस तरह से उनकी counseling की जाएगी, किस तरह से उनको treat करा जाएगा, वो बहुत different way से manage होता है. Different ways, all different spectrum है पूरा. I think इसमें अगर शुरू हो जाए तो बहुत high ended से बीच में बहुत सारे ऐसे individual cases आएंगे. Right. Correct. और कुछ अगर हम इनपुट्स दे सकें जो उसके अलावा. I think mostly जो चीजें थी, मैंने भी बहुत information gain की regarding psychiatric illness and how to when to add supplements to the patient, कब डालना है. Supplements I think उसकी कोई मतलब बात नहीं है. I think अगर reproductive age group में इंसान है, उसको by default लेना ही चाहिए folic acid supplementation शुरू से ही. It adds on to your medication, and एक supplement है, एक उसको ingrain कर देना एक अच्छी चीज है कि हर कपल अगर ले उस टाइम पे तो it's always good. ये protective factor है, कितना किसके लिए है, कितना probabilistically वो उसको protect कर रहा है किसी भी आगे की complication से अलग चीज है. But then वो एक साथ में ही add हो जाए तो वो I guess आपसे भी मुझे सीखने को मिला है कि any couple who is in a reproductive age group, folic acid is must. I think ये आपसे मैंने उसमें सीखा है कि we can actually go ahead with this and add this invariably हर ऐसे couple में. Right. हाँ जी. And अगर किसी को भी आपसे या मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना होगा, we always have this saved, this video. Yeah, they can always give us comments on the same or our individual levels or individual platforms. Right. Correct. ठीक है. I think we had a good session. Right. And Thank hope you. to have more sessions with you. More sessions in future. Right. Yeah. Sure. Okay, doctor. Thank you.